Welcome to today's session, learners. This is Achal, your SST teacher, and we are taking up SST for class 7. This is chapter number 3 of history, the Sultanate period, that is from 1206 to 1526. So what is the Sultanate period? It is the period of सुल्तान्स. जब सुल्तान्स का रूल था इंडिया पे, उसे सल्टनेट पीरियड कहा जाता है, राइट? सो वील बी टॉकिंग अबाउट दी सोर्सेज, कहाँ से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या हैं. देन वील टॉक अबाउट दी डायनेस्टीज दैट रूल्ड इन दिस पीरियड. So first one is the Mamluk or the slave dynasty. It ruled for the longest time from 1206 to 1290. Then came the Khalji dynasty. It ruled from 1290 to 1320. The Tughlaq dynasty from 1320 to 1414. Sayyid dynasty from 1414 to 1451. And the last one was the Lodi dynasty of the Sultanate period, that is from 1451 to 1526, and here after this they were defeated by the Mughals. So that came to the Sultanate period came to an end, right? So let's begin. So do you know, children, how many rulers were involved in the construction of Qutub Minar? कौन से rulers थे जिन्होंने कुतुब मीनार का construction में, they were involved? Yes, it were. So they were, firstly it was started by Qutbuddin Aibak. Then Firoz Shah Tughlaq also helped. Firoz Shah Tughlaq, and then it was completed by Iltutmish. Right? So now let's see the defeat of Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1192 by Shahabuddin Muhammad Ghori invited an era of Muslim rule in India. So second battle of Tarain में जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, then started the era of Muslim rule, right? Muslim rule India में उस time पे start हुआ with the entrance of Muhammad Ghori. The sudden death of Muhammad Ghori in 1206 and his failure to specify succession procedures brought his three slaves Tajad Dinilidiz, Nasiruddin Kubacha and Qutubuddin Aibak against each other. So क्या हुआ, जो मोहम्मद घोरी थे उनकी 1206 में सडन डेथ हो गई, और क्योंकि उन्होंने क्लियरली अपना सक्सेसर बताया हुआ नहीं था, तो उनके जो तीन स्लेव्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तजद दिनिलिदिस एंड नसीरुद्दीन कुबच्चा, उन तीनों की लड़ाई हो गई. दे केम अगेंस्ट वन अनदर. सो द पीरियड बिटवीन 1206 एंड 1526 in the Indian history is known as the period of the Sultan rulers. सारे के सारे जो इस टाइम पे थे वो सुल्तान्स थे, and that is why it is known as the Sultanate period. During this period, rulers belonging to 5 different dynasties sat on the throne of Delhi. तो 5 different dynasties के rulers इस टाइम पर दिल्ली को रूल किया उन्होंने. So let's see from where we get this information. What are the sources? The most valuable source of information for this period are the travelogues and the कोर्ट क्रॉनिकल्स. जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स एंड दी जो कोर्ट के क्रॉनिकल्स थे जिसमें सारे इवेंट्स और प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड की जाती थी बाय द स्क्राइब्स. सो क्रॉनिकलर्स जो होते थे वो हमारे सोर्सेज हैं. इब्न बतूता एंड मार्को पोलो विजिटेड इंडिया एंड रोट अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग दैट टाइम. सो कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स थे? इब्न बतूता एंड मार्को पोलो, जिन्होंने इस टाइम के बारे में लिखा. जियाउद्दीन बरानी, Shamsi Siraj, Atif and Afif and Minhaj Siraj gave a detailed account of court proceedings and details about the personal and public life of the Sultan. So ये सब जो writers थे इन्होंने काफ़ी डिटेल में इन रूलर्स के बारे में लिखा हुआ है अपने accounts में. Other important sources that tell us about this period are many monuments. जो इतने सारे monuments बनाए गए थे इस period में. कॉइन्स जो हैं उस टाइम के, इंस्क्रिप्शंस जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, दे आर आवर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस सल्टनेट पीरियड, राइट? सो पहली डायनेस्टी जिसने दिल्ली को रूल किया, दैट वाज द ममलुक और द
स्लेव डायनेस्टी. ममलुक मतलब क्या होता है, जो स्लेव्स होते हैं, स्लेव रूलर्स. So the rulers belonging to this dynasty are generally known as the slave rulers or the Mamluk sultans. Okay, जो इस टाइम के रूलर्स थे उनको slave rulers कहा गया, because all the Muslim rulers that ascended the throne of Delhi after the death of Muhammad Ghori in 1206 till 1290 were either themselves slaves or the slaves of their predecessor or descendants of the स्लेव रूलर्स. क्यों इसको स्लेव रूलर्स या स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा गया है, क्योंकि मोहम्मद घोरी के बाद जितने भी रूलर्स आए या तो वो खुद ही स्लेव्स थे या उन स्लेव्स के बच्चे थे, डिसेंडेंट्स थे, राइट, या फिर जो पहले के किंग्स थे उनके स्लेव्स थे. सो मेनली जितने भी रूलर्स आए वो स्लेव्स ही थे. सो दैट इज व्हाई दिस डायनेस्टी इज नेम्ड एज स्लेव डायनेस्टी और दी स्लेव रूलर्स, ममलुक रूलर्स. नाउ फर्स्ट हमारे जो रूलर थे वो थे Qutbuddin Aibak, and he ruled from 1206 to 1210. So Muhammad Ghori left his slave Qutbuddin Aibak in charge of the territories he had conquered. So Muhammad Ghori ने जितनी भी territories conquered की थी उसका इंचार्ज उन्होंने Qutbuddin Aibak को बनाया था. So after his death, Aibak became the master of Hindustan and founded the slave dynasty in 1206. So Muhammad Ghori की डेथ के बाद Aibak ने क्या किया, he became the master of Hindustan. हिंदुस्तान के मास्टर बन गए और जो डायनेस्टी थी उसको नाम दिया the slave dynasty, and it began in 1206. Aibak was a kind-hearted king, and for his generosity he was given the title of Lakh Baksh, that is he was giver of lakhs. So बहुत kind hearted थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बहुत जेनरस थे, लोगों को उन्होंने बहुत जेनरसली दिया करते थे. सो उनका नाम पड़ गया लाख बख्श, मतलब लाखों रुपए वो ऐसे ही दे दिया करते थे. नाउ नेक्स्ट रूलर वाज शमसुद्दीन इल्तुतमिश फ्रॉम 1211 to 1236. सो शमसुद्दीन इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट. सो जितने भी रूलर्स हैं ये स्लेव्स ही हैं. सो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश. He occupied the throne of Delhi in 1211. He was a very capable ruler and is regarded as the real founder of the Delhi Sultanate. बहुत capable थे, बहुत काबिल ruler थे और ऐसा माना गया है that he was the real founder of the Delhi Sultanate. He protected Delhi Sultanate's northwest frontiers from the wrath of Genghis Khan, who was the Mongol leader, right? So उन्होंने जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स थे दिल्ली सल्तनत के उनको चंगेज़ खान के गुस्से से बचाया. कैसे, क्या किया उन्होंने? बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह हुम चंगेज़ वॉज चेजिंग. चंगेज़ खान जिस रूलर का चेज कर रहे थे उनको शेल्टर देने से मना कर इल्तुतमिश ने दिल्ली को चंगेज़ खान के गुस्से से बचाया. He put down the rebellions within the empire and expanded his empire up to Bengal. So उनके empire में जितने भी rebellions हुआ करते थे, revolts हुआ करते थे, he used to suppress them, and उन्होंने अपनी जो empire थी उसे बंगाल तक expand कर लिया था. He destroyed the power of the Rajput princes and brought the whole of North India under his control. उन्होंने जो राजपूत प्रिंसेस थे उनको हराया, उनकी पावर को डिस्ट्रॉय किया, and he brought the whole of North India under his control. पूरा का पूरा North India इल्तुतमिश के कंट्रोल में था. He made Delhi the capital in place of Lahore. So उन्होंने लाहौर की जगह दिल्ली को कैपिटल बना लिया, and that is how he is known as, that is why he is known as the founder of the Delhi Sultanate. Now Iltutmish had many sons, but he considered none of them to be an able successor and named Razia, his daughter, as the next सुल्तान ऑफ दिल्ली, राइट. सो वो अपने उनके बहुत सारे बेटे थे बट वो किसी को भी इस काबिल नहीं समझते थे कि उसे राजा बनाया जाए, सुल्तान बनाया जाए. सो उन्होंने क्या किया, उनकी जो बेटी थी जो उन्हें केपेबल लगती थी जिसका नाम था रजिया, उन्होंने उसको सुल्तान ऑफ दिल्ली बना दिया, राइट. सो रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं. शी रूल्ड फ्रॉम 1236 to 1240. So though Iltutmish had nominated his daughter Razia as his successor to the throne, the nobles placed
रुकनुद्दीन फिरोज शाह ऑन दी थ्रोन। हालांकि इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को नॉमिनेट किया था फॉर दी थ्रोन, बट जो वहाँ के नोबल्स थे उन्होंने उसके खिलाफ जाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को थ्रोन पर बिठा दिया इंस्टेड ऑफ रज़िया सुल्तान। सो हाउएवर रुकनुद्दीन फिरोज शाह स्पेंट हिज टाइम इन रेवेलरी एंड प्लेजर्स। वो सिर्फ सेलिब्रेशंस में, अयाशियों में, प्लेजर्स में ही लगा रहता था, इग्नोरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। वो एम्पायर को ठीक से गवर्न नहीं कर रहा था। ही वॉज सो मच इन्वॉल्व इन सेलिब्रेशंस एंड प्लेजर्स। तो फिर क्या हुआ, रज़िया ascended the throne with the support of people of the city. So city के लोगों ने रज़िया को सपोर्ट किया and then she sat on the throne. Razia was the first and only Muslim lady who ever ruled India. So India की एकमात्र फीमेल रूलर, मुस्लिम रूलर थी रज़िया सुल्तान. However, the Pathan nobles regarded it below their dignity to pay obeisance to a women. जो पठान रूलर्स थे उनकी नाक पर बात आ गई थी, उनके लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात थी कि किसी वुमन को उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट पे करनी पड़ेगी. So Razia had all the qualities to rule Delhi Sultanate, but she was a woman, which was her greatest disqualification to rule. हालांकि वो बहुत केपेबल थी, फिर भी जो उनकी सबसे बड़ी कमी थी वो थी कि वो एक वुमेन है, राइट. एक वुमेन होने की वजह से उनको कभी उस काबिल नहीं समझा गया कि वो दिल्ली को रूल कर सके. The nobles plotted against her and deposed her in 1240. So सारे nobles जो थे वो रज़िया के खिलाफ हो गए और उन्होंने उसकी पोजीशन से, थ्रोन से उसको हटा दिया in 1240 and रज़िया was murdered soon after. और कुछ ही टाइम बाद उनका मर्डर भी कर दिया गया, right. Next, from the period of 1240 to 1266, after the death of Razia Sultan and before the ascent of Balban to the throne. So रज़िया के मरने के बाद और बलबन के सुल्तान बनने से जो बीच का टाइम था, several rulers came to power. बहुत सारे रूलर्स आए, but none of them could make an impact. कोई भी बहुत ही strong ruler नहीं था. So Nasiruddin Mahmud, an Iltutmish descendant, ruled from 1246 to 1266, but he was only a puppet of powerful nobles who wielded the real power. So इल्तुतमिश का ही descendant था नसीरुद्दीन महमूद जो पावर में आया from 1246 to 1266, but वो सिर्फ एक puppet था, right. रियल पावर किसके हाथ में थी, जो nobles थे. ओके, सो 1240 से लेके 1266 तक कोई भी अच्छा रूलर, इम्पैक्टफुल रूलर नहीं आया दिल्ली सल्तनत में. Then came Balban, Ghiyasuddin Balban, he reigned from 1266 to 1286. So Ghiyasuddin Balban, the most powerful ruler of the slave dynasty, ascended the throne in February 1266, right. 1266 की February में he became the ruler. An important noble since the reign of Iltutmish, he had been ruling in proxy during the time of Nasiruddin Mahmud. So ये noble थे उस टाइम पे जब नसीरुद्दीन महमूद जब राजा थे, सुल्तान थे, उस टाइम पे जो पावरफुल नोबल्स थे उनमें से एक थे घियासुद्दीन बलबन. He created a strong centralized army to deal with internal disturbances and to check the Mongols who were posing a serious danger to Delhi Sultanate. So उन्होंने एक अच्छी आर्मी सेटअप की, राइट, जो इंटरनल उनके रिवोल्ट्स होते रहते थे, रिबेलियंस होते रहते थे, उनको सप्रेस करती थी. एंड ऑल्सो टू चेक दी मंगोल्स जो क्या कर रहे थे, दे वर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत पर किसी भी टाइम अटैक करने के लिए तैयार थे. सो टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, बलबन अपॉइंटेड स्पाइज. सो उन्होंने जासूस अपॉइंट किए जिससे कि उनको सारी की सारी खबर टाइम टू टाइम मिलती रहे. Balban introduced the practice of sajda, that is the practice of bowing down and saluting. झुक कर सलाम करने को सजदा कहा जाता है. So Balban ने वो स्टार्ट किया and he also started pegos और ज़मीन बोझ, that is kissing the feet. So राजा के, सुल्तान के पैर चूमने पड़ते थे against the wishes of nobles. तो ये nobles की मर्जी के खिलाफ था. He also introduced a strict code of conduct for nobles and even banned them from attending parties or drinking wine. So उन्होंने nobles के लिए जो rules थे वो काफ़ी strict कर दिए थे और उनको parties में wine भी restrict कर दी थी. उनको parties में जाना ही restriction कर दिया था, उस पर उनको ban कर दिया था और wine पीने पर भी उनको पाबंदी लगा दी थी.
So his successors were weak rulers, and in 1290 the Khalji nobles took Delhi under their rule. So उनके जो successors थे गियासुद्दीन बलबन के, they were not very strong, वो weak थे. इससे क्या हुआ, खलजी nobles जो थे उन्होंने दिल्ली को overtake कर लिया. Right, so that was the beginning of the Khalji dynasty from 1290 to 1320 for about 40 years. So the Khaljis, wrongly believed to be Afghans, were actually Turks who had for a long time settled in the region of Afghanistan. So Khaljis को ऐसा माना जाता था कि वो अफगान्स हैं, but वो थे कौन, एक्चुअली में वो तुर्क्स थे जो काफ़ी लंबे टाइम से अफगानिस्तान में रह रहे थे. So they ruled for 3 decades and further expanded and consolidated the sultanates. उन्होंने 3 decades तक रूल किया और उन्होंने सल्टनेट को, दिल्ली सल्टनेट को और ज़्यादा एक्सपैंड किया और उसे कंसोलिडेट किया, यानी स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग बनाया. सो फर्स्ट खलजी रूलर जलालुद्दीन फिरोज खलजी फ्रॉम 1290 to 1296. So Jalaluddin Khalji founded the Khalji dynasty. You know, he was the founder of the Khalji dynasty. He was a weak ruler and followed mild and generous policies. वो काफ़ी weak ruler थे, उनकी जो policies थी वो काफ़ी weak थी, right? He compromised with the Mongols by marrying one of his daughters to their leader Alag Khan. So उन्होंने क्या किया, मंगोल्स के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया by marrying one of his daughters, अपनी डॉटर के साथ उनके जो लीडर थे अलग खान, उसके साथ मैरिज करके उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज विद द मंगोल्स. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरशैब हु टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन इन 1296. so उनको किसने सक्सीड किया, उनके जो नेफ्यू थे अली गुरशैब, राइट. सो ही वॉज अलाउद्दीन खलजी from 1296 to 1316. Alauddin Khalji was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics, right? वो पहले सुल्तान थे and he was a Turkish Sultan पहले जिन्होंने politics को और religion को एकदम separate किया. He proclaimed kingship knows no kinship. मतलब उनका जो कहना था कि जो किंगशिप है उसमें कोई भी जगह नहीं है रिलेशंस को फेवर करने की, फेवरेटिज्म की कोई स्पेस नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आपको फेवर किया जाएगा. नो, ही वॉज अगेंस्ट दिस. ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर एंड हिज गोल वॉज टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर विच एक्सटेंडेड अक्रॉस एंटायर इंडिया. सो ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर और उनका ये गोल था दैट ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर दैट एक्सटेंडेड अक्रॉस एंटायर इंडिया. पूरी इंडिया से भी एक्सटेंड करना चाहते थे वो अपनी एम्पायर को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज मिलिट्री कैंपेन्स. अलाउद्दीन annexed गुजरात एंड मालवा टू बिगिन हिज एक्सपेंशनिस्ट ऑपरेशन. सो अलाउद्दीन ने सबसे पहले क्या किया, गुजरात एंड मालवा को अपनी टेरिटरी में मिलाया. These conquests brought the western seaports under his control. इसके साथ क्या हुआ, जो वेस्ट के seaports थे वो भी उसके कंट्रोल में आ गए. He sent his armies to Rajasthan and between 1301 to 1303 he captured the forts of Ranthambore and Chittor from the Rajputs. So 1301 से 1303 के बीच में उन्होंने राजपूत से जो रैंथमबोर थे और चित्तौर थे उनके फोर्ट्स भी उन्होंने काबू कर लिए. Malik Kafur, his trusted and valiant general, then led a large and powerful army towards the south in an extremely successful campaign. So मलिक काफुर जो थे उनके बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत बहादुर जनरल थे. ही लेड अ लार्ज एंड पावरफुल आर्मी. वो एक बहुत ही पावरफुल आर्मी उन्होंने बनाई और उसे लेकर ही मूव टुवर्ड्स दी साउथ इन एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कैंपेन. उन्होंने साउथ में इन्वेड किया. ही डिफीटेड द यादवास, काकटियाज, होयसलाज एंड दी पांड्याज. इन सबको उन्होंने साउथ में हरा दिया. सो मलिक काफुर reaped a rich bounty. He reaped a rich reward from this campaign which included gold, silver, elephants, horses and slaves. तो इतना कुछ उन्होंने ये जो उनका साउथ में जो कैंपेन था जो उन्होंने इतना कुछ कमाया उससे इतना रिवॉर्ड मिला उनको. The vanquished kings, vanquished means जो किंग्स को डिफीट किया, the defeated kings were allowed to retain their territories but had to accept Alauddin's overlordship and had to pay tributes as a gesture of obeisance. So जितने किंग्स उन्होंने साउथ में हराए थे तो उन्होंने उनको अपनी टेरिटरी को रूल करने दिया. आगे भी वो किंग्स रहे बट उनको क्या करना था,
They had to accept that Alauddin was their overlord, यानी authority अलाउद्दीन की रहेगी, they will be the kings, but उनकी जो authority, उनके ऊपर जो authority है वो अलाउद्दीन की रहेगी, and उनको as a respect उनको tribute भी पे करना होगा, right? So they were allowed to rule their territories. Now let's talk about the economic reforms that took place in his period. So to finance his ambitious military campaigns, Alauddin needed money, and for this he initiated a number of economic reforms. अब इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए था उसके लिए उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, चेंजेस लाए. अलाउद्दीन खलजी क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट विद दीवानी मुस्तखराज. उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवानी मुस्तखराज, टू इंक्वायर इनटू द रेवेन्यू एरियाज एंड टू कलेक्ट देम. जो रेवेन्यू से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज वो करा करते थे उनसे, एंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करना दीवाने मुस्तखराज का काम था. He ordered the measurement of all land under cultivation and got it divided into different categories on the basis of its fertility. तो उन्होंने सारे जो cultivable lands थे उनको measure करवाया, नपवाया और उनको divide किया. किस फॉर्म में कि जो land सबसे fertile है उनको एक section में रखा in the order of their fertility. कौन सा खेत कितना उपजाऊ है, कौन सा land कितना उपजाऊ है, इनके basis में उनको divide किया. The land tax खर्च was fixed accordingly. So जितना ज़्यादा उपजाऊ खेत था उतना ज़्यादा ही उस लैंड का टैक्स था, राइट. सो इस हिसाब से खर्च, जिसे लैंड टैक्स को कहा जाता था, वो उसके हिसाब से डिसाइड किया गया, राइट. इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इनकम फॉर द ट्रेजरी, जो उनका खजाना था उसको बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन इंक्रीज द लैंड टैक्स इन द गंगा जमुना दोआब रीजन. सो गंगा और जमुना के बीच का जो लैंड रीजन था, दोआब था, वहाँ का उन्होंने लैंड टैक्स इंक्रीज कर दिया. The most fertile agrarian land expanse. ये जो गंगा यमुना जो दोआब region था, it was the most fertile area, and they raised Alauddin increased the tax to 50% of the produce. जितना भी produce होता था उसका 50% अलाउद्दीन को ही जाता था. He ensured that apart from these royal taxes, no money or tax in kind was extracted from the farmers or traders by royal functionaries. But ये tax लगाने के बाद ही मेड श्योर कि इसके अलावा ये जो रॉयल टैक्स था, इसके अलावा फार्मर्स को और ट्रेडर्स को कोई भी और टैक्स ना देना पड़े किसी भी रॉयल फंक्शनरी को, किसी भी रॉयल ऑफिशियल को. हेंस कर्बिंग करप्शन. इससे क्या हुआ, करप्शन एकदम खत्म हो गया. ही इनिशिएटेड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, रिव्यू होने लगे अकाउंट्स, राइट. शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स वर मॉनिटर्ड क्लोजली एंड एनी मैल प्रैक्टिस, जो शॉपकीपर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको बहुत क्लोजली उनको मॉनिटर किया जाने लगा. और कोई भी मैल प्रैक्टिस, जो बुरी जो चीज़ें होती हैं, एडल्ट्रेशन होती है या ओवर प्राइसिंग, किसी चीज़ को ज़्यादा दाम पे बेचना, या और वेट्स एंड मेजर्स मैनिपुलेशन, वेट्स को मैनिपुलेट करना, मेजर्स को मैनिपुलेट करना, राइट. सो ऑल दिस वाज केप्ट इन चेक, मॉनिटर किया जाता था शॉपकीपर्स को, एंड whoever was found guilty he was punished severely, right. So this was done by Alauddin Khalji. Now these measures of taxation, checks and controls and fixing of prices were meant to on one hand increase the royal income, right. So ये जो taxation थे, measures के, जो checks किए जा रहे थे, reviews किए जा रहे थे, इनके क्या purpose थे. पहला purpose was to increase the royal income, मतलब जो रॉयल खजाना था, शाही खजाना था, उसको बढ़ाना एक पर्पस था. एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा पर्पस वॉज टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सो दैट हिज सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल कुड लिव इन कम्फर्ट एट लोअर सैलरीज. जिससे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, कॉमन मैन की जो ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों का प्राइस कम किया जा सके और उनकी जो सैलरीज़ हैं, कम सैलरीज़ में ही वो अपना खर्चा अच्छे से चला पाएँ, अच्छे से मैनेज कर पाएँ अपना लाइवलीहुड, राइट. सो दिस इन टर्न रिड्यूस द सैलरी बर्डन ऑन द ट्रेजरी. इससे क्या हुआ, चीज़ों का प्राइस कम हो गया, तो जो खजाना था उसमें सैलरी का बर्डन भी नहीं आया. सो सेपरेट मार्केट्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर फूड ग्रेन्स, क्लॉथ, हॉर्सेज, फ्रूट्स एट्सेट्रा विथ फिक्स्ड प्राइसेस. फिक्स्ड प्राइस मार्केट्स बनाई गई जहाँ पे ये जो कमोडिटीज़ थी दे वर सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइसेस. अलाउद्दीन खलजी इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. His main concern was to enable the soldiers to live on their pay and to have necessities of life. मतलब कि अपनी जो lower salaries थी उनमें ही उनका काम चल जाए, जिनके उनमें soldiers थे, और उनकी सारी necessities भी meet हो साथ के साथ, right.
सो दैट इज एट अ गुड्स एट अ प्राइस विद इन देयर रीच, सो दैट जितने भी गुड्स उनको चाहिए वो उनके प्राइस रेंज के बीच में आ जाए, वो आसानी से उन्हें खरीद सकें. To this end, he evolved the system of controlling prices of items of daily use and ensured that these were made easily available. So he made sure कि जितने भी necessary items हैं वो easily available हो and they are available at affordable prices to the people, right? Now what kind of military reforms he took? With the money that Alauddin could generate through his economic reforms, he could now afford to maintain a huge army. अब ये जो economic reforms थे, इससे जो पैसा आया उसकी वजह से अलाउद्दीन एक बड़ी आर्मी मेंटेन कर पाए. अलाउद्दीन खिलजी introduced the first permanent standing army of India. हर टाइम रेडी आर्मी थी उनके पास and it was the first. He reorganized the spy system. उन्होंने जो spy system था उसे भी दोबारा से organize किया, strengthen किया. A full description और चेहरा ऑफ ईच सोल्जर इन द आर्मी वॉज केप्ट. जितने भी सोल्जर्स थे आर्मी में उन सब का फुल डिस्क्रिप्शन यानी उनका चेहरा रखा जाता था रिकॉर्ड में. ही इंट्रोड्यूस दाग और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस टू प्रिवेंट सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड हॉर्सेस बाय द इन्फीरियर वंस. तो हॉर्सेस जो थे उनके जो गुड क्वालिटी हॉर्सेस थे उन पर एक स्टैंपिंग टाइप करी जाने लगी, जो उनकी हॉट आयरन से उनकी स्किन पर एक दाग छोड़ा जाता था, ब्रांडिंग की जाती थी जिससे कि कोई उनके हॉर्सेस को बेकार हॉर्सेस से या इन्फीरियर रेस ऑफ हॉर्सेस से चेंज ना कर पाए, राइट. सो उनके हर हॉर्स पर उनकी मोहर लगी होती थी. ही अबॉलिश्ड इक्ताज. इक्ताज क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट्स. ये लैंड ग्रांट्स होते हैं. जो इक्ताज होते हैं उन्होंने वो बंद कर दिया. किसी को भी नोबल्स को या फार्मर्स को किसी को भी ये लैंड ग्रांट्स देने उन्होंने बंद कर दिए. सो ही अबॉलिश्ड इक्ताज ऑफ रॉयल ट्रूपर्स. जितने भी सोल्जर्स थे उनको लैंड ग्रांट्स मिला करते थे वो बंद कर दिए उन्होंने. एंड ही पेड द सोल्जर्स इन कैश. उन्होंने लैंड की जगह कैश में पे करना स्टार्ट किया. The Sultan was kept informed of all important developments across his vast empire through a highly organized spy system. उनका जो spy system था it was highly organized और उनको पल पल की खबर मिलती थी ये spies के थ्रू कि किस कोने में उनकी टेरिटरी के क्या हो रहा है. Now many of Alauddin's economic and military measures were later followed by Sher Shah and Akbar. इनके जो ये measures थे ये आगे जाकर शेर शाह और अकबर ने भी फॉलो किए. A war of succession ensued after Alauddin's death and the last Khalji ruler Khusrau Malik was defeated by Ghiyasuddin who laid the foundation of Tughlaq dynasty, right. So Tughlaq dynasty में Ghiyasuddin Tughlaq ने जो अलाउद्दीन डेथ के बाद जो लास्ट खलजी रूलर खुसराव मलिक थे उनको डिफीट किया एंड दैट वाज द एंड ऑफ खलजी डायनेस्टी एंड बिगिनिंग ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, राइट. So Tughlaq dynasty was from 1320 to 1414, right. So Tughlaq dynasty ruled over India for nearly 100 years and it was the longest dynastic rule in the history of Delhi Sultanate. So सबसे ज़्यादा टाइम के लिए almost 100 years के लिए जिसने रूल किया जिस डायनेस्टी ने it was the Tughlaq dynasty from 1320 to 1414. Ghiyasuddin Tughlaq, that is from 1320, he ruled from 1320 to 1325. He was the first ruler of the Tughlaq dynasty. He put down the rebellions and strengthened the Sultanate by restoring peace and order, right. He was the first ruler and उन्होंने जितने भी rebellions या revolts होते थे उन्हें suppress करते थे and he strengthened the Sultanate. उन्होंने Sultanate को बहुत strong बनाया by restoring peace and order. बहुत शांति लाए वो उस टाइम पर. He died in an accident and his son Jona Khan succeeded him under the title Muhammad bin Tughlaq. So उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके जो बेटे थे जोना खान उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उनको आगे सक्सीड किया. So he ruled from 1325 to 1351. Muhammad bin Tughlaq, who ascended the throne in 1325, was a powerful Tughlaq ruler. बहुत powerful rulers थे. Ibn Battuta wrote a lot about him in his travelogues and noted that Sultan was a man much ahead of his time who had great ideas and grandiose plans which failed because the common people could not relate with them. So जो traveler थे Ibn Battuta, he wrote a lot about him in his travelogues. उन्होंने अपने accounts में travelogues में बहुत कुछ लिखा
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एंड नोटेड डाउन दैट दी सुल्तान वाज अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब उनकी जो थिंकिंग थी वो अपने टाइम से काफ़ी आगे की सोचा करते थे, राइट। सो उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, उनके प्लान्स बहुत ग्रैंड थे, बट ऑल ऑफ हिज प्लान्स फेल्ड बिकॉज लोग उससे, कॉमन मैन उससे रिलेट नहीं कर पाया करते थे। सो ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ही हैड 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, उनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम। फर्स्ट वन इज टैक्सेशन रिफॉर्म इन द दोआब, that was in year 1326. Let's talk about that. So taxation in Doab was increased to create additional revenue during the initial years of the reign of the Sultan. So उन्होंने अपने initial years जो थे रूल के, उसमें revenue increase करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स को increase कर दिया था जो गंगा यमुना दोआब region था. However, the taxes were increased at the time when there was a famine in the Doab owing to the failures of the rain. So उनका जो टाइमिंग था टैक्स इंक्रीज करने का, इट वॉज वेरी बैड. उस टाइम पर फेमाइन यानी सूखा पड़ा हुआ था, राइट, देयर वाज नो रेन. द peasants instead of paying taxes abandoned their lands and adopted highway robbery. So जितने भी फार्मर्स थे, peasants थे, वो टैक्स देने की बजाय उन्होंने क्या किया, अपने लैंड्स को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया और जाकर हाईवे पर रॉबरी करने लगे, चोरियां करने लगे. The tax collectors continued to collect tax by oppression, which resulted in widespread revolts. So जो टैक्स कलेक्टर्स थे वो फेमाइन के बावजूद टैक्स कलेक्ट करते रहे, राइट. इससे क्या हुआ, लोग रेबेलियस हो गए, बहुत रिवोल्ट्स होने लगे. Thus this scheme of Sultan failed miserably. इससे क्या हुआ, ये स्कीम जो थी सुल्तान की, ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई. नेक्स्ट वॉज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल. वो अपनी जो कैपिटल थी उसे शिफ्ट करना चाहते थे. तो क्या किया उन्होंने, इन 1327 मोहम्मद तुगलक अटेम्प्टेड टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी विच वॉज रीनेम्ड दौलताबाद. तो उन्होंने पूरी की पूरी जो दिल्ली की जनता थी अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करने की कोशिश की टू देवगिरी, जिसका नाम उन्होंने दौलताबाद रखा. सो द डिजायर ऑफ सेफगार्डिंग द कैपिटल from the Mongol invasions from the northwest, the necessity of consolidating the empire in the south, and the temptation to utilize the rich resources of the south were primary reasons for the transfer of the capital. So क्या reasons थे उनके जिसकी वजह से वो अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे थे. फर्स्टली they wanted to safeguard their capital, अपनी कैपिटल को मंगोल्स से सेफगार्ड करना चाहते थे फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट. और क्या था, दे वांटेड टू अपनी जो उनकी साउथ में जो एम्पायर थी उसे स्ट्रेंथन करना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, और जो वहाँ के रिसोर्सेज थे उन्हें यूटिलाइज करने की जो उनके अंदर लालच थी, उस वजह से उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी चाहिए. द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली वॉज ऑर्डर्ड टू लीव एंड द सिटी वॉज लेड बेयर. पूरी की पूरी जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी उनको वहाँ से उठकर दौलताबाद जाने के ऑर्डर्स दे दिए. पूरी की पूरी दिल्ली की सिटी खाली करा दी गई, राइट. द लॉन्ग एंड आर्डियस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वॉज एन एक्सट्रीमली टॉर्मेंटिंग एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली. इतनी जो लंबी जर्नी थी, राइट, इट वॉज टायरिंग, इट वॉज आर्डियस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो जर्नी थी, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील हुए. It was a torturous experience for the people of Delhi to shift to Daulatabad. This scheme of the Sultan failed massively when he realized the impossibility of protecting the empire's northwestern borders from the Deccan. Right? फिर शिफ्टिंग के बाद he realized कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि डेक्कन से द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स फ्रॉम द डेक्कन उनको प्रोटेक्ट किया जाए. फिर उन्होंने क्या किया, he realized it is impossible. The entire population was then ordered to return to Delhi. फिर उन्होंने वापस सबको दौलताबाद से पूरी पॉपुलेशन को दिल्ली जाने की ऑर्डर कर लिया. सो उनका ये जो ट्रांसफ़र करने का जो प्लान था कैपिटल का, ये भी मिजरेबली फेल हो गया. देन व्हाट वाज हिज नेक्स्ट रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. उन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को वो इतनी वैल्यू उसकी होती नहीं है जितनी हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, राइट. जैसे कि सपोज कॉपर के कुछ कॉइन्स हैं, ब्रॉन्ज के कॉइन्स हैं, हम उसको गोल्ड की वैल्यू दे देते हैं. सो दैट इज नोन एज टोकन करेंसी. सो द सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग हिज रीन एंड फिक्स्ड अप देयर रिलेटिव वैल्यूज. उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स रिलीज किए
और उन सबको एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक वैल्यू अटेन करा दी सबकी, राइट, फिक्स कर दी उनकी वैल्यूज. द रिमार्केबल फीचर ऑफ द कॉइनेज सिस्टम वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी and issue of copper and brass coins in 1329 since silver was in short supply. सिल्वर की सप्लाई कम थी तो उन्होंने क्या किया, कॉपर और ब्रास के कॉइन्स बनाए, इशू किए in 1329. The Sultan made these coins legal tenders and kept their value at par with gold and silver coins, right? तो उनकी जो वैल्यूज थी कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स की वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बराबर रखी गई, राइट? इससे क्या हुआ, He also established mints in the cities like Delhi, Lakhnauti, Salgaon, Darul Islam, Sultanpur, Tughlaqpur, Daulatabad, etc. Mints क्या होते हैं? So these are facilities where coins are produced, जहाँ पर coins produce किए जाते हैं. तो इतनी जगहों पर उन्होंने coins produce करने के लिए facilities provide की जिन्हें mints कहा जाता है. He launched the coins without taking any precaution against फोर्जरी, यानी उन्होंने फ्रॉड के अगेंस्ट, कितना फ्रॉड हो सकता था उन कॉइन्स को, उसके ऊपर, उस एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. इसकी वजह से क्या हुआ, द मार्केट वॉज फ्लडेड विथ फेक कॉइन्स. लोगों ने फेक कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनका फोर्जरी पर कोई ध्यान नहीं था. इन दिस सिचुएशन द सुल्तान हैड टू विदड्रॉ ऑल द कॉपर कॉइन्स विच कॉज्ड अ ह्यूज लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी, राइट? सो कॉपर कॉइन्स जितने भी थे उन्हें मार्केट से वापस लेना पड़ा, जिससे खजाने पर, शाही खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ा. इन एडिशन टू दिस फॉरेन ट्रेड सफर्ड एज नोबडी एक्सेप्टेड द टोकन करेंसी. ये जो कॉइन्स थे कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पता नहीं था कि वो फेक है या रियल है. इसकी वजह से ट्रेड ने भी बहुत सफ़र किया. द सुल्तान ऑल्सो हैड टू पे 1 सिल्वर कॉइन फॉर ईच टू दी ट्रेजरी. सुल्तान को भी ट्रेजरी को हर कॉइन के बदले एक सिल्वर कॉइन देना पड़ा. This scheme of the Sultan also proved to be a grand failure. ये भी जो स्कीम थी सुल्तान की, ये भी एक फेलियर ही साबित हुई. Ziauddin Barani in his chronicle said that Muhammad bin Tughlaq lacked political judgment and was incapable to rule. So जो ज़ियाउद्दीन बरानी थे उन्होंने अपने क्रॉनिकल्स में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक केपेबल रूलर नहीं थे, राइट? ही लैक्ड पॉलिटिकल जजमेंट, उनकी जजमेंट अच्छी नहीं थी, राइट? नाउ नेक्स्ट वाज हिज खुरासन एक्सपेडिशन. मोहम्मद बिन तुगलक also had the ambition to expand his empire up to Central Asia. वो Central Asia तक अपनी empire को expand करना चाहते थे. For this purpose, he recruited a large number of soldiers and equipped them with weapons and supplies. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे soldiers को उन्होंने recruit कर लिया, बहुत सारे soldiers को अपनी army में add किया, उनको weapons provide किए, उनको supplies provide की. He even paid their salary for 1 year in advance. उनकी 1 साल की सैलरी एक साथ एडवांस में भी पे कर दी थी उन्होंने, because he wanted to expand his empire to the Central Asia. However, this expedition was given up. उन्होंने ये expedition कभी किया ही नहीं, उसको give up कर दिया उन्होंने, because this was later thought to be an impossible mission which could result in unacceptable cost to the sultanate and misery to the soldiers. So later he realized कि ये impossible mission है, इसका इसका खर्चा इतना आएगा कि उसके लिए दिल्ली सल्तनत के लिए मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा, and also there will be great loss of the army, of the soldiers. So these new soldiers were disbanded. इनके जो ग्रुप था इसको डिसॉल्व कर दिया गया, right? So again this was also a bad a failure for the Muhammad bin Tughlaq. Next was Karachal expedition. In order to secure the northern frontiers of the Sultanate, the Sultan sent an army to Kangra region, right? अपने northern frontiers को strong करने के लिए उन्होंने एक army भेजी to the Kangra region, that is in Himachal Pradesh, and also to Tibet. This was also not considered a good decision. ये decision भी उनका अच्छा नहीं निकला. So as a ruler, Muhammad Tughlaq was devoted and extremely laborious. वो devoted भी थे, अपनी empire को expand करना चाहते थे, बहुत मेहनती भी थे, बहुत laborious भी थे, but he proved to be a failure. लेकिन वो एक failure ही prove हुए. He gained no success in any field of administration during the 26 years of his rule. उन्हें किसी भी administrative field में success नहीं मिली उनके 26 साल के शासनकाल में. His schemes made him unpopular with his nobles.
द उलेमा एंड द कॉमन पीपल. जो नोबल्स थे, उलेमास कौन होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं इस्लाम के, सो उनमें कॉमन पीपल में ही बिकेम रियली अनपॉपुलर. As a consequence, he began to lose control over his empire and revolts broke out in Bengal, Gujarat, Warangal, etc. So as a consequence, he began to lose control over his empire and revolts broke out in Bengal, Gujarat, Warangal, etc. इन सब जगहों पर उसके वीक होने की वजह से हर जगह पर रिवोल्ट्स होने लगे, लोग रिबेलियस हो गए. Two independent and powerful kingdoms came up in the south, विजयनगर एंड भामनी. सो 2 इंडिपेंडेंट जो किंगडम्स थे इस टाइम पर उभर कर आए, वो थे विजयनगर किंगडम एंड दी भामनी किंगडम. एंड ही डाइड वाइल कैंपेनिंग इन सिंध. सो मोहम्मद बिन तुगलक सिंध में जब कैंपेन कर रहे थे उस टाइम उनकी डेथ हो गई. एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक. और उनको किसने सक्सीड किया थ्रोन पर, उनका कज़न था फिरोज शाह तुगलक. सो ही सक्सीडेड मोहम्मद बिन तुगलक इन दी रूल, राइट. Now next ruler was Firoz Shah Tughlaq, that is he reigned from 1351 to 1388. So he was a cousin of Muhammad bin Tughlaq who succeeded after him. After the reigning sultan's death, the nobles and the theologians of the court selected Firoz Shah as the next sultan. Okay, so Muhammad bin Tughlaq के death के बाद जो वहाँ के जो कोर्ट के लोग थे, नोबल्स थे, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सिलेक्ट किया. He wanted the support of the noblemen and ulama to rule. For that he made iqtadari system hereditary to please the nobles and ruled in accordance with Islamic laws to appease the ulama. अब ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, right, he wanted noblemen to support him. वो चाहते थे कि noblemen जो हैं वो उनको support करें. तो उन्होंने क्या किया, जो इक्तादारी जो अबॉलिश कर दिया गया था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको वापस से लेके आए और उसे हेरिडिटरी बनाया. यानी अगर एक लैंड एक नोबल को दिया गया है, राइट, तो उनके बच्चों को आगे से वही लैंड मिलता जाएगा. इट बिकेम हेरिडिटरी. एंड उलेमा एंड टू प्लीज द नोबल्स एंड रूल्ड इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक लॉज. वो इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग ही रूल करने लगे. टू अपीज दी उलेमा, उलेमाज यानी कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनको प्लीज़ करने के लिए वो इस्लामिक रूल्स के हिसाब से रूल करने लगे. सो फिरोज शाह तुगलक इज कंसिडर्ड टू बी अ रिफॉर्मिंग रूलर. ही एस्टैब्लिश्ड 4 न्यू टाउन्स. उन्होंने 4 नए टाउन्स बनाए, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर एंड हिसार फिरोज़ा. सो ही ऑल्सो सेटअप 2 डिपार्टमेंट्स. उन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स और सेटअप किए. दीवाने खैरात, दैट वॉज फॉर डिपार्टमेंट फॉर पुअर एंड नीडी. ये गरीबों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने खैरात एंड दीवाने बंदागन, दैट वाज अ डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स. ये 2 डिपार्टमेंट्स भी उन्होंने सेटअप किए. ही बिल्ट मैनी टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेज. उन्होंने ये सब चीज़ें भी डेवलप कराई फॉर द पीपल. ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ केनाल्स फॉर इरीगेशन. उन्होंने केनाल्स जो कि आर्टिफिशियल वाटरवेज होते हैं, इरीगेशन के लिए हेल्प होती है, उनको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए ऑर्डर किए. द रिवर यमुना, उससे पानी जाने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन कैनाल्स की स्टार्ट की, जिससे टू द सिटी ऑफ हिसार. हिसार में रिवर यमुना का पानी जाता था. रिवर घग्गर टू फिरोजाबाद, रिवर सतलुज टू घग्गर एंड मांडवी एंड सिरमौर हिल्स टू हंसी इन हरियाणा, राइट. सो ये सब कंस्ट्रक्शंस उन्होंने कराई फॉर इरीगेशन. Firoz Shah also had many Sanskrit works translated into Persian and Arabic, right. उन्होंने बहुत सारे जो संस्कृत वर्क्स थे उनको ट्रांसलेशन कराया उनका into Persian language and Arabic language. After Firoz's death, the empire disintegrated and many regions became independent. So उनकी डेथ के बाद जो एम्पायर थी उनकी वो बिखर गई, डिसइंटीग्रेट हो गई और बहुत सारे रीजन्स जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए. Okay. Then it was Timurs. तैमूर ने इन्वेड किया in 1398. So Timur was a Mongol ruler who attacked India and on his way to Delhi he captured and looted all the towns. So Timur एक मंगोल रूलर थे जिन्होंने इंडिया को अटैक किया और दिल्ली आते आते ऑन द वे टू दिल्ली उन्होंने रास्ते में जितने भी टाउन्स पड़े थे उनको कैप्चर किया और उनको प्लंडर किया, लूट किया उनको. At that time about 1 lakh people were put to death by Timur. उस टाइम पे उन्होंने करीब 1 लाख लोगों को मार दिया था. With the wealth that he looted during his invasion, he beautified his capital Samarkand.
building palaces, mosques and grand buildings, right? So जो पैसा वो यहाँ से लूट कर लेकर गए, उन्होंने अपनी कैपिटल समरकंद को ब्यूटिफाई किया, उससे पैलेसेस बनाए, मॉस्क्स बनाए, राइट, बिल्डिंग्स बनाई बहुत ही ग्रैंड. एंड बिफोर रिटर्निंग होम तैमूर अपॉइंटेड खिज़्र खान एज हिज रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया. और वापस जाने से पहले उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रखा जिसका नाम था खिज़्र खान. ओके, वो उनकी तरफ से यहाँ पर रूल कर रहे थे. लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन तुगलक्स रूल. सो द सुल्तान, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द दिल्ली सल्तनत. जो सुल्तान होते थे वही सबसे पावरफुल होते थे सल्तनत में. येट ही हैड टू डेलीगेट द पावर्स टू द नोबल्स by giving them land grants called iktas. उनको आगे से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था नोबल्स को by giving them iktas. इक्तादारी उस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट की थी for the purpose of collecting taxes and maintaining the army. टैक्स कलेक्ट करने के लिए और आर्मी को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस कलेक्ट लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे. He kept all the powers in his own hands. बाकी सारी जो पावर्स थी उन्होंने जो सुल्तान थे वो अपने हाथ में रखते थे. As a result, there was a continuous dissent within the royal court as the nobles wanted to have larger powers with them and they revolted when they observed any weakness in the sultan. इसकी वजह से कि सुल्तान मेजर पावर्स जो थी वो अपने हाथ में रखते थे, इसकी वजह से जो सुल्तान थे, राइट, जो कोर्ट में हर टाइम डिसएग्रीमेंट रहता था, राइट. सो जो नोबल्स थे वो और पावर्स चाहते थे अपने पास. इस वजह से जब भी वो कभी किसी रूलर के अंदर कोई भी वीकनेस देखते थे तो वो रिवोल्ट कर दिया करते थे. सो तुगलक्स हैड टू कीप सप्रेसिंग रिवोल्ट्स वन आफ्टर अदर ड्यूरिंग द इंटायर रूल. सो उनके पूरे रूल के टाइम में दे हैड टू कीप सप्रेसिंग दीज रिवोल्ट्स. जो भी रिबेलियंस रिबेल्स होते थे उनको बार बार उन्हें सप्रेस करना पड़ता था, क्योंकि कहीं पर भी कोई रूलर अगर वीक होता था तो नोबल्स उनको क्या करते थे, they revolted. Now another trouble for the sultan was the ulama who pressurized the sultan to rule as per the Quranic law and bring back Sharia laws. अब क्या प्रॉब्लम थी सुल्तान के लिए? जो उलेमा थे, जो स्कॉलर्स थे इस्लाम के, वो क्या चाहते थे कि कुरान के हिसाब से रूल किया जाए, कुरानिक लॉज के हिसाब से. और वो ये भी चाहते थे कि शारिया लॉज वापस लाए जाए. शारिया लॉज क्या होते हैं? उसमें पूरा का पूरा लिखा है आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से लाइव्स आपकी किस तरीके से आपको जीनी है, उसके अंदर सारे उसके रूल्स एंड लॉज लिखे हैं. सो ही वांटेड टू, जो उलेमास थे वो चाहते थे कि शारिया लॉज को वापस लागू किया जाए. विद मोहम्मद बिन तुगलक कमिंग इनटू पावर, कॉइन्स वर इशूड इन द नेम ऑफ कैलिफ, राइट. मोहम्मद बिन तुगलक के पावर में आने के साथ साथ कैलिफ्स के नाम पर कॉइन्स इशू किए जाने लगे. एज द उलेमा डिक्लेयर्ड his rule to be un-Islamic and Muhammad Tughlaq had to pacify them to get their approval. क्योंकि कैलिफ्स के कॉइन्स में फोटोज आने लगे क्योंकि उनको अन-इस्लामिक, जो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको उलेमास ने अन-इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया था. एंड उनको पैसिफाई करने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको अब नोबल्स को प्लीज़ करना था. So a strong sultan would not listen to them much, but a weak sultan was bound to appease them, as did Firoz Shah by bringing back the Sharia laws. अब कोई strong ruler होता तो वो उलेमास के आगे घुटने नहीं टेकता, उनकी बात नहीं मानता. But फिरोज शाह ने क्या किया? He brought back the Sharia law. वो Sharia law फिर से वापस उन्होंने लागू कर दिया. Both these Tughlaq rulers received the authority to rule from the caliph to lend religious legal mandate to their rule, right. So जो religious legal mandate था, ये दोनों जो रूलर्स थे इनको अथॉरिटी मिली कैलिफ से कि रिलीजियस जो इनका रिलीजियस लीगल मैंडेट को वापस से रूल में लाने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये रिलीजियस लीगल मैंडेट क्या थे कि आपको 5 टाइम्स प्रेयर करनी है, राइट. आपको रमदान के टाइम पे फास्टिंग करनी है, मक्का जाना है, आर्म्स आपको देने हैं, राइट. सो ऑल दीज वर रिलीजियस लीगल मैंडेट्स टू बी फॉलोड. Now the court of the Tughlaqs were very ceremonial. All nobles were made to do sajda and pairbaz before the sultan. So जो nobles थे उनको bow करके सजदा करना पड़ता था और उनके सुल्तान की फीट को किस करना पड़ता था. The sultan sat on a raised throne with the nobles, ministers, princes, department heads, ambassadors. They had fixed places to stand. जो सुल्तान थे
वो एक ऊंची प्लेस पर बैठा करते थे और बाकी सारे जितने भी ऑफिशियल्स थे वो सब उनकी फिक्स प्लेसेस थी खड़े होने के लिए। द गार्ड्स एंड अदर अटेंडेंट्स मेट ऑल द नीड्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की कोई भी ज़रूरतें होती थी तो वो गार्ड्स पूरी करते थे और जो अटेंडेंट्स होते थे कोर्ट अटेंडेंट्स वो फुलफिल किया करते थे। स्क्राइब्स नोटेड डाउन ऑल कमांड्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, और वहाँ पर स्क्राइब्स बैठे होते थे जो सारी की सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को नोट डाउन किया करते थे। जितने भी कमांड्स इशू किए जाते थे उन सबको नोट डाउन करना स्क्राइब्स का काम होता था इन दी कोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोबिलिटी। The nobles, most of whom were Afghans or Turks, a very powerful and influential lobby during the Tughlaq rule. तो तुगलक रूल के टाइम पे ये जो नोबल्स थे, most of whom जो अफगान्स या अफगानिस्तान या तुर्क्स थे जितने ज़्यादा से ज़्यादा, so they formed a very influential lobby, एक बहुत important group, influential group बनाते थे वो। The rulers appointed their slaves to high positions. Some of them were military commanders and even governors. तो जो slaves थे वहाँ के rulers उनको high positions देते थे, जैसे किसी को military commander बना दिया, किसी को governor बना दिया। The administration under the Tughlaqs was divided into 4 major departments. So Tughlaqs के अंदर जो under जो administration थी उसको 4 major departments में divide किया गया। First was दीवाने वजारत, that was फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट, पैसों से रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट, इट वाज दीवाने वजारत। देन दीवाने अर्ज, इट वाज रिलेटेड टू मिलिट्री अफेयर्स, आर्मी से रिलेटेड जितने भी इशूज थे दे केम अंडर दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट। देन दीवाने रिसालत, दैट वाज रिलीजियस मैटर्स, धर्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आती थी। एंड देयर वाज दीवाने इंशा, दैट वाज रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आपको बातचीत करनी है, राइट, तो उसके लिए this was the department. Different nobles were selected by the Sultan as heads of different departments. Nobles को different departments का head बनाया गया। The wazir, जो prime minister होते थे, he supervised the work of all officials, वो सारे officials के work को supervise करते थे। Looked after revenue and general affairs of the sultanate, revenue को लुक आफ्टर करते थे और बाकी जो छोटे छोटे अफेयर्स होते थे, जनरल अफेयर्स जो होते थे सल्तनत के, दे वर ऑल लुक्ड आफ्टर बाय द वजीर और द प्राइम मिनिस्टर। ही अपॉइंटेड हाई ऑफिशियल्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वाज वेरी पावरफुल। सो जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे उनको भी ही यूज्ड टू लुक आफ्टर देम एंड ही वाज वेरी पावरफुल। इनकी जो पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। द काजी was the chief judge, जो जज होते थे कि डिसीजंस पर मैटर्स पर डिसीजंस लिया करते थे वो होते थे काजी। सो दे डिसाइडेड द क्रिमिनल एंड रिलीजियस मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स और रिलीजियस मैटर्स पर डिसीजंस काजी दिया करते थे। एंड अपील कुड बी मेड टू द सुल्तान अगेंस्ट द काजीज जजमेंट, अगर लोगों को काजी का जजमेंट फेयर नहीं लगता था देन दे कुड रेज एन अपील टू द सुल्तान, वो सुल्तान को अपील कर सकते थे। The Bakshi was the paymaster for the army. Paymaster means जो salaries distribute किया करते थे आर्मी की, that person was known as the Bakshi. The noble who was the chief commander of the army was Arizi Mumalik, right? So जो noble आर्मी के chief commander होते थे आर्मी के, right? He was the Arizi Mumalik. He recruited, trained and equipped soldiers through the supreme command of the army lay with the sultan. So अर्ज़ी मुमलिक का काम क्या होता था, आर्मी को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके अंदर नए सोल्जर्स रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेन करना, उनको वेपन्स प्रोवाइड करना, इक्विप करना, दैट वाज ऑल दी अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्ज़ी मुमलिक, राइट। नाउ नेक्स्ट वाज द इक्ता सिस्टम, दैट इज द लैंड कंट्रोल। During the Sultanate period, the nobles were given iktas, that were the grants of land by the सुल्तान। तो सल्तनत पीरियड में इक्ताज सुल्तान नोबल्स को दिए जाते थे। दिस द नोबल्स हु रिसीव्ड इट वर कॉल्ड इक्तादार्स, राइट, जो नोबल्स को इक्ताज दिए जाते थे दोज नोबल्स वर कॉल्ड इक्तादार्स। अंडर दिस सिस्टम द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड दी इक्ताज। तो इस सिस्टम के अंदर पूरा जो लैंड था उसको डिवाइड किया गया था इंटू इक्ताज, स्मॉल स्मॉल डिविजन्स थे which were assigned to nobles, officers and soldiers for the purpose of administration and revenue collection, right? So ये जो इक्ताज थे, जो divisions of land थे, ये soldiers को, nobles को, officers को provide किए जाते थे, जिनका purpose क्या था,
उन लैंड्स को एडमिनिस्टर करना, उनका ध्यान रखना और रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। द इक्ताज वर ट्रांसफरेबल, ये जो इक्ताज होते थे ये ट्रांसफरेबल थे, राइट। दैट इज द होल्डर्स ऑफ इक्ताज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एवरी 3 to 4 आवर्स। मतलब जो लोग थे उनको ट्रांसफ़र किया जाता था एक इक्ता से दूसरे इक्ता, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन एवरी 3 to 4 ईयर्स, हर 3 से 4 साल बाद ट्रांसफ़र किया जाता था इक्ताज को। It means that the grant of इक्ता did not imply a right to the land। मतलब इक्ता अगर आपको प्रोवाइड किया गया है, that does not mean कि आप उस लैंड के ओनर हो गए हैं, राइट। इट वॉज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सिर्फ आपको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यू डू नॉट हैव एनी राइट ओवर द लैंड, क्लियर। Now the slave and the Khalji sultans gave iktas only to very high ranked military commanders। वो इक्ता सिर्फ very high ranking जो military commanders थे सिर्फ उनको दिया करते थे। Under the Tughlaqs however iktas were given more leniently which resulted in a large number of iktadars। लेकिन जो तुगलक रूल की बात की जाए उस टाइम पे वो काफ़ी लैंड ग्रांट्स किया करते थे, ये काफ़ी लीनियंटली ये इक्ताज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इक्तादार्स हो गए थे। द इक्तादारी सिस्टम विटनेस्ड न्यूमरस चेंजेस ड्यूरिंग द सल्टनेट पीरियड। इनिशियली इक्ता वाज अ रेवेन्यू यील्डिंग पीस ऑफ लैंड विच वाज असाइंड इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी सैलरी की जगह पर सैलरी ना देकर इन कैश आपको कुछ लैंड्स ग्रांट कर दिए जाते थे, पहले ये हुआ करता था, राइट। हाउएवर ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक्स reign it became hereditary as it could be transferred from father to son। so फिरोज शाह तुगलक ने नोबल्स को प्लीज करने के लिए इस इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया था, यानी अगर फादर को लैंड अपॉइंट किया गया है, दिया गया है, तो उसके आगे से उसके सन का होगा वो लैंड, ओके। सो सिंस द सुल्तान वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ ही कुड नॉट स्टॉप दिस प्रैक्टिस, वो उस प्रैक्टिस को नहीं रोक पाए। मोरओवर मोस्ट इक्तादार्स एक्टेड एज इंडिपेंडेंट रूलर्स ऑफ देयर अलॉटेड लैंड्स। तो लोग क्या करने लगे, जो इक्तादार थे उनको जो लैंड अलॉट किए गए थे वो उसके इंडिपेंडेंट रूलर बन गए, उसको वो अपना ही मानने लगे। दे एस्टैब्लिश देयर राइट ओवर दोज लैंड्स। सो व्हेनेवर द सुल्तान वाज वीक द नोबिलिटी बिकेम मोर पावरफुल। जब भी सुल्तान वीक होते थे तो नोबल्स पावरफुल हो जाते थे और अटैक किया करते थे, रिवोल्ट किया करते थे। Now what was the next dynasty that came after Tughlaq dynasty? It was the Sayyid dynasty that was from 1414 to 1451. Now in all there were 4 Sayyid kings who ruled for a brief period। 4 Sayyid king थे जिन्होंने एक छोटे शासन काल में रूल किया। First was Khizr Khan Sayyid, he ruled from 1414 to 1421। So Khizr Khan was the governor of मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के रूल के टाइम में जो ये खिज़्र खान सैयद थे, ये क्या थे, गवर्नर थे मुल्तान के। who had joined तैमूर in his invasion of Delhi, जो तैमूर जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के गए थे, रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटर बना के गए थे, he was the खिज़्र खान, right। and he was bequeathed the governorship of मुल्तान, उनको मुल्तान की गवर्नरशिप दी गई, लाहौर एंड दीपालपुर। सो खिज़्र खान कॉन्कर्ड दिल्ली इन 1414। 1414 में खिज़्र खान ने दिल्ली को कॉन्कर किया। ही वॉज अ सैयद, सो हिज डायनेस्टी वॉज नेम्ड सैयद डायनेस्टी। खिज़्र खान रूल्ड ओवर दिल्ली एंड द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स टिल 1421। 1421 तक उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को रूल किया। But his whole reign was marked by utter chaos and disorder। That means there was no peace, no order, it was extremely chaotic। वो हर तरफ बहुत chaos था और disorder था उनके रूल के टाइम पे, right। So next was मुबारक शाह सैयद, he ruled from 1421 to 1434। He succeeded Khizr to the throne after his successful expeditions against Mewatis, Katehars and in the Gangetic Doab area। So उन्होंने खिज़्र खान को सक्सीड किया मुबारक शाह सैयद ने आफ्टर हिज सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस मेवातीस के अगेंस्ट, कातेहार्स और गैंगेटिक दोआब रीजन में भी। ड्यूरिंग हिज रीन द सूबेदार्स ऑफ पंजाब, भटिंडा एंड दोआब ब्रोक आउट इन रिवोल्ट एंड द होल ऑफ हिज रीन वाज स्पेंट इन ट्राइंग टू सप्रेस देम। सो ये जो सूबेदार्स थे पंजाब के, भटिंडा और दोआब के, वो सब
इतना उन्होंने रिवोल्ट किया उसके रीन के टाइम पे कि वो अपने पूरे शासन काल में सिर्फ इन रिवोल्ट्स को सप्रेस ही करते रह गए, राइट. सो he was killed by the nobles in his own court and was succeeded by his nephew मोहम्मद शाह. सो उनके नोबल्स ने उनको उन्हीं के कोर्ट में मार दिया था और उनके जो नेफ्यू थे मोहम्मद शाह, he became his successor. नाउ नेक्स्ट मोहम्मद शाह सैयद ने, उनके नेफ्यू ने आगे से उनको कंटिन्यू किया and he reigned from 1434 to 1443. The nobles put Muhammad Shah on the throne, but the new sultan could not handle the infighting among the nobles in the court. So मोहम्मद शाह को उन्होंने अपॉइंट तो कर दिया, बट ये जो कोर्ट के बीच में, जो नोबल्स के बीच में आपस में जो फाइट्स होती थी वो उसको हैंडल नहीं कर पाते थे. He was authorized to rule a meager area of land, a meager area of around 30 miles, while the rest of the sultanate was ruled by the nobles. तो उनको बस एक छोटा सा 30 माइल्स का एरिया रूल करने के लिए दे दिया और बाकी जो पूरी सल्टनत थी उसको नोबल्स चलाने लगे, नोबल्स रूल करते थे उस पर. So during his reign, the ruler of Malwa invaded Delhi, which was however saved by the valiant Subedar of Lahore, Behlol Lodi. Okay, so मोहम्मद शाह सैयद के रूल के टाइम पे रूलर ऑफ मालवा, मालवा के जो रूलर थे उन्होंने दिल्ली को अटैक किया, इन्वेड किया, एंड हाउएवर दैट अटैक वाज सेव्ड, ही वाज डिफेंडेड. किसने डिफेंड किया? सूबेदार थे लाहौर के, बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे, जिनका नाम था बहलोल लोदी. सो उन्होंने प्रोटेक्ट किया दिल्ली को. सो अलाउद्दीन आलम शाह, ही वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, फ्रॉम 1443 to 1451. The last Sayyid king, Alauddin Alam Shah, descended in favor of Behlol Lodi and he himself retired. तो ये खुद तो रिटायर हो गए और उन्होंने बहलोल लोदी को थ्रोन पर बिठा दिया. Thus began the Lodi dynasty. So इसके बाद लोदी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, the extent of which was confined to Delhi and a few surrounding areas. जिसका एरिया था दिल्ली और उसके जो आसपास के कुछ एरियाज थे, they came under the Lodi dynasty. Now the Lodi dynasty, which ruled from 1451 to 1526. So Lodis were Afghans who were the last sultanate dynasty to rule from Delhi. So Lodi dynasty was the last sultanate dynasty and they were Afghans. Behlol Lodi first ruler the, from 1451 to 1488 he had ruled. He was one of the Afghan sardars who established himself in Punjab आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर. सो तैमूर के इन्वेजन के बाद इन्होंने पंजाब में अपने आप को इस्टेब्लिश किया. ही वॉज वन ऑफ द अफगान सरदार्स. ही फाउंडेड द रूल ऑफ द लोदी डायनेस्टी बाय असर्पिंग द थ्रोन फ्रॉम द लास्ट ऑफ सैयद रूलर्स. तो ये जो लास्ट सैयद रूलर्स थे उनसे उन्होंने ये जो गद्दी थी ये हड़प ली थी, राइट. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव रूलर. ही ट्राइड टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ दिल्ली by removing the rebellious governors and replacing them with loyal Afghan nobles, right. वो बहुत strong ruler थे और उन्होंने जो दिल्ली की ग्लोरी थी, जो उसका स्प्लेंडर था, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी रेबेलियस गवर्नर्स थे उनके सल्टनेट में, उन्होंने उन सबको रिप्लेस कर दिया बाय रिप्लेस देम विद लॉयल अफगान नोबल्स. अफगान नोबल्स को उन्होंने उनकी जगह पर अपॉइंट किया. Conquering territories around Delhi and after continuous war for 26 years, he succeeded in extending his authority over Jaunpur, Revel, Etawah, Mewar, Sambhal, Gwalior etc. So उन्होंने अपनी territory को इतना expand कर लिया था. Though he was an illiterate, he extended his patronage to art and learning. Art and learning को उन्होंने काफ़ी support किया, दो खुद वो illiterate थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे. When he died in 1488, his empire stretched from Punjab to Bihar. जिस टाइम उनकी डेथ हुई तो उनकी एम्पायर पंजाब से लेके बिहार तक फैली हुई थी, राइट. नाउ नेक्स्ट वाज लोदी डायनेस्टी में सिकंदर लोदी एंड ही reigned from 1489 to 1517. So Behlol Lodi's son and successor to the throne, Sikandar Lodi, continued his father's expansionist campaign. So Sikandar Lodi बेहलोल लोदी के ही बेटे थे और उन्होंने अपने फादर की तरह ही एक्सपेंशनिस्ट जो प्रॉपर्टी थी, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने का जो प्रोसेस था उसे कंटिन्यू रखा. ही कॉन्कर्ड बिहार एंड जौनपुर एंड मेड अ फ्रेंडली अलायंस विद द रूलर ऑफ बंगाल. उन्होंने बिहार और जौनपुर को कॉन्कर कर लिया था और फ्रेंडली अलायंस, उन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन किया विद द रूलर ऑफ बंगाल.
He shifted his capital from Delhi to Agra, a city founded by him. उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उससे दिल्ली से उसको आगरा में शिफ्ट कर लिया, एंड आगरा वॉज अ सिटी दैट वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी. Sikandar introduced a number of welfare schemes for the common people like lowering prices of all essential commodities. उन्होंने कॉमन लोगों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लागू की, जैसे जो एसेंशियल जो नेसेसिटीज़ वाली जो कमोडिटीज़ थी, चीज़ें थी, उन सब के प्राइस उन्होंने काफ़ी कम कर दिए. एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स, वो फार्मर्स को लोन्स भी प्रोवाइड करने लगे. ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ही इंट्रोड्यूस द गज़े सिकंदरी, दैट इज सिकंदर्स यार्ड ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स. उन्होंने एक मेजरमेंट का सिस्टम निकाला फील्ड्स को, कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने का. दैट वॉज नोन एज गज़े सिकंदरी और सिकंदर्स यार्ड. एक यार्ड को 32 इंचेस के अराउंड माना जाता था, राइट. दैट वॉज सिकंदर्स यार्ड. नाउ नेक्स्ट वॉज इब्राहिम लोदी, एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1517 to 1526. So Ibrahim Lodi was the son of Sikandar Lodi. ये सिकंदर लोदी के बेटे थे, and he was also the last king of the Lodi dynasty and the last sultan of Delhi. इनके बाद सल्तनत पीरियड खत्म हो गया. The Afghan nobility was brave and freedom loving, but it was because of its divisive and individualistic tendencies that the Afghan monarchy was weakened. So ये जो अफगान nobility थे, right, they were brave, ये brave थे, and they were freedom loving, इन्हें आज़ादी बहुत पसंद थी, but क्योंकि इनके जो जो tendencies थी, they were divisive and individualistic, वो अपने ही फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते थे. इसकी वजह से क्या हुआ, जो अफगान मोनार्की थी वो वीक पड़ गई. Okay, moreover, Ibrahim Lodi asserted the absolute power of the Sultan, which further irked the nobles. तो जो nobles थे वो और ज़्यादा चिढ़ गए थे इनसे, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने सारी जो powers थी, he declared, asserted means he declared the absolute power of the Sultan, यानी सारी powers जो थी वो सुल्तान ने अपने हाथ में ले ली थी. So that irritated the nobles even more. So at last, Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, invited Babur to overthrow Ibrahim Lodi. So जो गवर्नर थे पंजाब के दौलत खान लोदी, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि वो इन्वेड करें और इब्राहिम लोदी को बाहर फेंक दें. बाबर accepted the offer, inflicted a crushing defeat on Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. So बाबर ने जो दौलत खान लोदी का इन्विटेशन था उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया, एंड इट वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से मशहूर है. इन 1526 दिस हैपेंड एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. सो सल्तनत पीरियड एंड हो गया इब्राहिम लोदी के बाद, और मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ विद दिस अटैक, राइट, बाबर के साथ. सो नो सुल्तान ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम हैड बीन किल्ड ऑन द बैटल फील्ड. कोई भी सुल्तान जो थे पूरे सल्तनत पीरियड के एक्सेप्ट इब्राहिम लोदी, कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जिसकी बैटल फील्ड पर डेथ हुई. ही वॉज दी ओनली वन, राइट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सल्तनत पीरियड. दिस इज द ग्लोसरी चिल्ड्रन, प्लीज गो थ्रू दिस एंड वील हैव अ क्विक रिव्यू. Delhi became an important city for 5 dynasties ruled it for 3 centuries. Almost 3 centuries तक 5 dynasties ने इसे रूल किया. Slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid, and the last one was the Lodi dynasty. Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia and Balban, they were the important rulers of the slave dynasty. This dynasty ruled from 1206 to 1290. Alauddin Khalji was the most powerful sultan of the Khalji dynasty. Tughlaq dynasty came to power in 1320. Its rulers were strong, but the nobles and ulema were given a lot of authority, right? Rulers तो strong थे, but nobles और ulemas के पास बहुत authority थी. The rulers of Sayyid dynasty ruled from 1414 to 1451. They were followed by the Lodi sultans from 1451 to 1526, and then the Sultanate period came to an end, and it was the beginning of the Mughal period, right? So now let's check our understanding and begin with our exercises. Darken the circle of correct option in the OMR sheet, children. Let's see. Dash dynasty was the longest reigning dynasty under the Delhi Sultanate. So सबसे लंबे टाइम तक किसने शासन किया दिल्ली सल्तनत में? तुगलक्स, राइट, तुगलक डायनेस्टी. नंबर 2,
Arizi Mumalik was the head of dash in Tughlaq's rule. So किसके head थे ये? आर्मी के, उनमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, ये सब यही प्रोवाइड किया करते थे. नंबर 3, द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूल ऑफ, किसके रूल से स्टार्ट हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल से. नंबर 4, लैंड ग्रांट्स given during सल्तनत पीरियड वर कॉल्ड, क्या कहा जाता था लैंड ग्रांट्स को? इक्ता. नंबर 5, अलाउद्दीन खलजी was the most powerful sultan of the Khalji dynasty. Clear? Now let's see, fill in the blanks. Number 1, Dash was the first and only Muslim lady who ever ruled in India, so it was Razia Sultan. Number 2, Alauddin Khalji created a new department called Dash to inquire into the revenue area. So it was Diwane Mustakhraj. Diwane Mustakhraj. Number 3, Dash is the only sultan that was killed on the battlefield. So it was the last of Lodi dynasty, Ibrahim Lodi. And number 4, Alauddin Khilji introduced the first permanent standing army of India. Clear everyone? Right. Now we move to true and false. Number 1, Balban was one of the slaves of Muhammad Ghori. So Balban क्या घोरी के slave थे? No, he was a noble. False. Number 2, Mubarak Shah Khalji introduced economic reforms. Yes, he did. Now, Alauddin Khalji founded the city of Siri. Yes, true. Number 4, Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty. Yes, he was. True. Right? So, these are detailed question and answers, children. Kindly attempt them yourselves. So, we come to an end of this chapter, children. This was all about the Sultanate period. Clear? So, in the next chapter, I hope to see you all. Till then, you all stay blessed and stay tuned to our channel. Bye kids. Have a good day.